Hello, good morning, students. Myself Abhay again with you people. And today we are going to discuss the topic number fifth of genetic and evolution, that is the chromosomal theory of inheritance. So, chromosomal exactly and the work published by the Mendel was not satisfied, so some of the scientists worked together after his work, after Mendel's work, and they put together some efforts and give the new idea about the existence of chromosome. So from here, this theory become the chromosomal theory of inheritance. In this experiment, what they just do the some more efforts of the in Mendel's, because his work was unrecognized till 1900. Firstly, the main reason behind this, that time was not communication was not very easy, and nobody easily published or publicized his work among the community. So, and this one is the main factor, and second one is the concept of gene and factor was not uh, well known, or was not explained by the other scientists. So, and the third one is the Mendel approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable. And there are three main reasons that why that the work done by the or experiment done by the Mendel was not accepted as he suggested, or that key genes or the pair of genes get separated at the time of gametogenesis, but not this all was accepted because क्योंकि बेटा द मेन रीज़न क्या था कि ना तो मेंडल ने उस पर प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट कर पाया उस टाइम पे, कि जो उसने अपने में अपने लॉज दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और डोमिनेंस, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसको एक पब्लिसाइड नहीं हो पाया। दूसरा, जीन्स के बारे में नहीं किसी को पता था। थर्ड वन इज़ द मेन फैक्टर इज़ द मैथमेटिकली जो उसने एक्सप्लेन किया था, ही जस्ट फाइंड आउट द रेशियोज फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक, and that was not acceptable by many of the scientists or biologists of his time. So after this, in 1900, three scientists were there: D. Veris, Correns, and von Trekker Mack. इंडिपेंडेंट रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजॉल्व। बेटा उन्होंने तीनों ने मिलके इंडिपेंडेंटली मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स पे उस पर काम किया, और दोबारा उन्होंने रिजल्ट दिए इनहेरिटेंस के। क्लियर है? दोबारा उन्होंने क्या दिए? रिजल्ट दिए इनहेरिटेंस के। तो वो जो रिजल्ट मेरे इनहेरिटेंस के, वो हमारे बने क्रोमोसोमल थ्योरी। एवरीथिंग वॉज सेम, दे जस्ट शिफ्टेड द फिनोमिना और phenomena of inheritance of genes to the phenomena of inheritance of chromosome. They just do the microscopic study over all these factors or genes with the help of cell division. उन्होंने क्या किया? सेल डिवीजन देखी। सेल डिवीजन इज जस्ट the division of cell into two daughter cells. A parent cell is divided into two daughter cells. While cell division, what they saw that there is a dark stained body within the nucleus of this cell, and it is double in number and get half after the division of cells. They give the name that colored body एज कॉल्ड इट एज अ क्रोमोजोम। ठीक है बेटा, उन्होंने एक देखा कि सेल डिवीजन के टाइम पे एक न्यूक्लियस के बीच में एक डार्क स्टेन्ड बॉडी है, वो क्या करती है? पहले डबल होती है, आफ्टर सेल डिवीजन इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, इक्वली डिवाइड हो जाती टू डॉटर सेल्स में। सो बाय 1902
द क्रोमोजोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैज़ बीन वर्कड आउट। बेटा इस पे वर्क हुआ। तो बाद में बेटा एक वॉल्टर स्यूटन और थियोडर बॉवरी ने नोट किया क्रोमोजोम के बिहेवियर को। देन दे पर्सनली गोन थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द और द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम टू एक्सप्लेन मैंडल्स लॉ। उन्होंने मैंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्रोमोजोम मूवमेंट को स्टडी किया। तो जब उन्होंने क्रोमोजोम मूवमेंट को स्टडी किया तो देन दे कम टू नो अबाउट दी दैट की क्रोमोजोम कंसिस्ट ऑफ genes and that genes are always in pair form and every gene have a particular location over every chromosome. So there are two alleles of genes having two alleles, both were located on homologous chromosome. That homo means same, logous means position. Both alleles were over the same position on the pair of homologous chromosome. होमोलोगस क्रोमोजोम के एक अगर एक जीन का एलील एक पोजीशन नंबर 2 पे पड़ा है तो सेम दूसरे क्रोमोजोम जो होमोलोगस में क्या होगा, पेयर होगा। पेयर में 2 क्रोमोजोम हो गए। अगर क्रोमोजोम जो पहले वाला है उसके सेकंड पोजीशन पे किसी चीज़ का जीन पड़ा जीन का एलील है तो सेम सेकंड क्रोमोजोम जो है उसके सेकंड पोजीशन पे उसी करैक्टर का जीन होगा। ठीक है। सो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम ओवर हेयर। वी हैविंग G1 एंड G2 फेस। देन G1 के पास बेटा हमारे पास G2 फेस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम है, दोनों पेयर कर गए हैं। क्लियर है। देखो जो ब्राउन वाली क्रोमोजोम लाइन है इट विल गेट डबल। ठीक है। और येलो वाली भी, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी, बोथ द क्रोमोजोम गेट डबल्ड or they make a pair form. We call it a homologous and this pair form is known as bivalent. This is known as bivalent. During the anaphase of meiosis 1 they get separated out from the centromere part of the chromosome. The white dot within the chromosome, look at in this middle of the yellow one and in the brown one, you look at this diagram. This white dot is the centromere of the chromosome. This centromere get detached from the 2 chromatids of the chromosome during the anaphase, and these 2 chromatids get separated and move to the opposite poles of the cell, and at last it will produce 4 haploid chromosomes. That is the chromosome number get halved. From here they conclude the concept that not only genes get separated out just after anaphase or after the completion of meiosis, the chromatid gets separate out एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा उन्होंने क्या कंक्लूजन किया, मेंडल ने बोला था कि जीन जो होते हैं उसके लिए पेयर फॉर्म में होते हैं, वो दोनों सेपरेट आउट होते हैं। नहीं, क्रोमोसोमल थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन किया था कि जब हमारे गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे गैमीट्स होते हैं, मियोसिस प्रोसेस होती है, मियोसिस प्रोसेस क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देती है, तो जीन्स जैसे कि जैसे हमारे क्रोमेटिड के ऊपर पड़े होते हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। उनके सिंपल क्रोमेटिड्स ही क्रोमेटिड्स ही अलग होते हैं, ना कि जीन। जो पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम होते हैं उनके क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो उनके ऊपर जीन्स रहते हैं वो लिंक्ड रहते हैं, वो एक दूसरे का मिले रहते हैं, जीन्स नहीं सेपरेट होते। सिंपल क्या सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स। सो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन था कि मेंडल का जो रिजल्ट थे दैट वाज एक्यूरेट, बट द problem is that he was talking about only genes but not about the chromosome. But these were not the genes, these were the chromosome that get separated out at the time of gametogenesis. क्लियर है। मेंडल ने बोला था जीन सेपरेट होते नहीं, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस।
for the formation of gametes. So here you can see the comparison between gene and the chromosome. So both are always in pair. Gene are always in pair form. Clear है? Then but segregation at the time of gametogenesis or at the time of gamete formation, such as only one of the each pair is transmitted to the gamete. ठीक है, जो हमारे वो होंगे segregation at gamete formation, only one pair of each is transmitted to the gamete. ठीक है, तो बेटा जब गैमीट बनेंगे तो हमारे एक पेयर ही आगे फॉरवर्ड होगा, एक पेयर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर और हमारा जो जीनोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. क्लियर है. इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर. सो दोनों के बीच में हमने कंपैरिजन देखा है, दोनों का दोनों सेम है. जीन्स भी पेयर फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर फॉर्म में होते हैं. जीन्स हमारे सेपरेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, क्रोमोसोम भी सेपरेट होते हैं. ठीक है, बट जो हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन्स हैं वो इकट्ठे इनहेरिट होंगे, ट्रांसमिट होंगे, बट जो क्रोमोसोम है वो हमारा अलग अलग इनहेरिट होगा. ठीक है, और दोनों के दोनों सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली. सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस वन के एनाफेज पे क्या होता है बेटा, हमारे पास जो टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट द मेटाफेज. जो हमारे मेटाफेजिक स्टेज पे सारे के सारे क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेट पे प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे क्या कर देते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स क्या कर देते हैं, सेपरेट कर जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं. ठीक है, सेग्रीगेट करने के बाद यू कैन लुक एट दिस एनाफेज ऑफ मियोसिस वन एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस वन. इन द बोथ केसेस यू कैन लुक एट दिस, they were at the anaphase, they get separate out, ब्राउन अलग हो गए हैं. ये देखो एनाफेज पे ये दोनों हमारे पेयर फॉर्म में थे, थोड़ी मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे. ये देखो सेंट्रोमियर से ये अपार्ट हो गए दोनों, ब्राउन, ये येलो ब्राउन हो गए. ये हमारे पास 4 जर्म सेल्स बन गए. ठीक है, सेम इज़ द केस. ये जब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ के बीच में हमारे पास क्या है, हमारे पास कि ए लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड ए येलो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट सेम पोल. ठीक है, ये सेम पोल पे थे. इधर सेकंड पॉसिबिलिटी में भी है लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट सेम पोल. बोथ आर द सेम एग्जांपल, दे बोथ सॉर्टेड इंडिपेंडेंटली. दोनों हुए, दोनों अपनी मर्जी से अलग होके इन्होंने 4 जर्म सेल्स बना दिए. ठीक है, और जो इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स थे वो एज इट इज़ ही वो एक दूसरे का ज्वाइन रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे और एज इट ही नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ से हमारी आई थी क्रोमोसोमल थ्योरी. सो हियर इज द कंक्लूजन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी. सुटन एंड बॉबी आर्ग्यूड दैट, व्हाट दे कंक्लूड, लुक एट, यू जस्ट अंडरलाइन, read it carefully. The first paragraph. Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of chromosomes का पेयर होना, उनका सेपरेट होना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उस पेयर को क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम, वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ, वो किसको सेग्रीगेट करेंगे, क्रोमोसोम तो सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे, पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरी, वो वाले जीन्स को सेपरेट करेंगे जो उनके ऊपर प्रेजेंट हैं. जो येलो वाले के ऊपर, यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, जो ब्राउन ब्राउन के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है वो ब्राउन के साथ चले जाएंगे, जो येलो के ऊपर प्रेजेंट है वो येलो के साथ चले जाएंगे. दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल ने बोला था सारे जीन्स नहीं अलग होते, ओनली दैट जीन्स, the genes present over the same chromatids remain combined or remained linked. They will never get segregate. Only the chromatids of the chromosome get segregate.
क्लियर है. And this would lead to the segregation of pairs of genes they carried or factor they carried. और सेग्रीगेशन जीन्स किन की होगी, जो उनके ऊपर प्रेजेंट होंगे वो उसके ब्राउन वाले के ब्राउन वाले के साथ चले जाएंगे, येलो वाले के येलो सारे के साथ जाएंगे. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle. सो सटन ने इसको इस अपने कॉन्सेप्ट को, इस रिजल्ट को किसके साथ ज्वाइन किया था, मेंडल के प्रिंसिपल्स के साथ. फ्रॉम हेयर दैट्स वाई दे कॉल्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. दे कॉल्ड इट अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ये आइडिया उसके कहाँ से देखा था, इसने इनहेरिटेंस थॉमसन, हंट, मॉर्गन और उसके कुलीग ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है. और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी दिया था कि इसी की वजह से क्या होता है, हमारी वेरिएशन आती हैं बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. तो उन्होंने किसके बीच में देखी थी, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगैस्टर के बीच में. ठीक है. तो इस स्टडीज़ के बीच से हमें क्या रिजल्ट मिला था, दे कम टू द रिजल्ट दैट during the sexual reproduction there is a occurrence of variation within the genomes. Clear है. This is all about the chromosomal theory of inheritance. Next is the topic is the linkage and recombination. We will do it on tomorrow. I hope you all got whatever I taught you. If anybody having any query, you can call me or you can message me. Okay, bye. All the best.